سب سے پہلے بات کریں گے مسجد نبوی واقعے پر سعودی حکومت مناسب کارروائی کرے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سعودی حکومت سے درخواست کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ سعودی حکام سے درخواست کریں گے کہ ملوث افراد کی فوٹیجز بھیجیں۔ ایسے لوگ ارض مقدس پر رہنے کے قابل نہیں، انہیں واپس بھیجا جانا چاہیے۔ ان کے چہرے سے کل قدرت نے نقاب اتار پھینکا۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ حرم پاک اور مدینہ منورہ میں تحریک انصاف کی قیادت کی سرپرستی میں بے ادبی کی گئی۔ شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگزیب پر حملہ کیا گیا۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ اس واقعے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا۔ عمران خان خاص علماء کو بلا کر دعائیں کرا کے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کتنی نفرت، کتنی تقسیم چاہتے ہیں؟ عمران خان کی سیاست جمہوری نہیں، فسطائیت کی سیاست ہے۔ نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب کے اوپر تو فزیکل اسالٹ ہوا ہے، اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف بھی آپ یہی سمجھے کہ فزیکل حد تک ہی بلکہ بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ہراس کیا گیا ہے۔ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لیں، اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج بنی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بھیجیں، تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے اول تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جانا چاہیے۔ یہ لوگ وہاں پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ مدینہ کا نام لے کے ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے مدینہ کی توہین کر رہے تھے، کبھی آپ کچھ خاص علماء کو بلا کے دعائیں منگوا کے مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم مدینہ والے کا اور روضہ رسول کا اس کا احترام تو لازم ہے۔ صرف اپنی منفی سیاست کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس سے اکراس دا ورلڈ پورے دنیا میں مسلمانوں کا دل دکھا ہے۔ کتنی تقسیم چاہتے ہیں؟ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالیٹکس جمہوری پالیٹکس نہیں ہے، وہ فاشزم چاہتے ہیں۔ مقدس مقامات پر عوامی رد عمل نہیں آنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن اس واقعے میں شامل نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی وضاحت، کہا کہ جس رد عمل کا پرائم منسٹر اور کابینہ کو سامنا کرنا پڑا، ان کا لندن اور پیرس میں بھی یہی حال ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں لوگوں کی نفرت سامنے آ جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مذہب کو استعمال نہ کریں۔ قاسم سوری پر حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ تمام لوگ پہچانے جا سکتے ہیں، ان پر دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے۔ یہ جو مارچ ہے جس میں 20 لاکھ لوگ انشاءاللہ پورے پاکستان سے شرکت کریں گے اور اسلام آباد کی طرف آئیں گے، یہ تو لوگوں نے خود آنا ہے۔ ہم نے تو صرف جو ہے وہ کال دینی ہے، اور اگر آپ گرفتار کر بھی لیں گے، کسی کو بھی کر لیں گے، آپ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ وہ حکومت جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہ ہو، جو یہ تو خود گھر سے باہر نکل نہیں پا رہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ تمام جو اس وقت ان کی اسٹریٹجی ہے وہ ڈر کے اوپر مبنی ہے، اور اتنی ڈری ہوئی حکومتیں زیادہ دیر انشاءاللہ۔ کل حرم پاک میں پی ٹی آئی کی قیادت کی سرپرستی میں ہونے والی بے ادبی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تڑپ کر رہ گئے۔ غصے میں بھرے سینکڑوں پیغامات موصول ہوئے کہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی۔ لیگی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ، کہا حکومت کا ایکشن سیاسی انتقام تصور ہوگا اور یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے۔ عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے جس طرح مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ان کے چہرے سے کل قدرت نے نقاب کو اتار پھینکا۔ ان کا مکروہ چہرہ ہی ان کی سب سے بڑی سزا ہے۔ استدعا ہے کہ نفرت کی سیاست ختم کی جائے۔ وزیر توانائی خورم دستگیر نے کہا کہ ہمارے 2 وزراء پر مسجد نبوی کے احاطے میں حملہ ہوا، لیکن انہوں نے حملہ آوروں کی زبان میں جواب نہیں دیا، نبی کی سنت کا پاس رکھا، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دعا دی۔ سعودی انتظامیہ کے فوری ایکشن لینے پر شکر گزار ہیں۔ امید ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ مدینہ کے دعوے کرنے والوں نے کل شب مدینہ کا تقدس پامال، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ میری تو استدعا ہے کہ یہ نفرت اور تعصب کی سیاست جو ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر، جو ہمارے 2 کولیگ وزراء ہیں جن کے اوپر یہ حملہ ہوا، زبان سے بھی اور فزیکلی بھی، انہوں نے
दुरुस्त तौर पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बतौर रहमतुल लिल आलमीन, उसका पास रखा, क्योंकि हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिन्होंने पत्थर खाकर भी, आन होकर भी दुआ दी। तो हमने उस ज़बान में जवाब नहीं दिया, उस पैराए में जवाब नहीं दिया जिस किस्म का हमला हम पर हुआ। सऊदी अथॉरिटीज़ के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने वक्ती और फौरी एक्शन लिया। और सियासी नफरतें मुआशरे में इंतशार का सबब बनने लगी। मदीना वाक़े के बाद शाहसीन बुगटी के गार्ड्स और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान ने इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी पर हमला कर दिया। इस दौरान फरीकैन ने एक दूसरे को कुर्सियां, प्लेटें और चमचे फेंक कर मारे। कासिम सूरी कहते हैं सहरी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोगों ने हमला कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इम्पोर्टेड बुज़दिलों से हर महाज पर दो दो हाथ करेंगे। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियासी तलखी माशरती इंतशार का बायस बनने लगी। मदीना मुनव्वरा में शाहजैन बुगटी से बदतमीजी के बाद उनके हामी भी मुश्तइल हो गए। इस्लामाबाद में शाहजैन बुगटी के गार्ड्स और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी पर हमला कर दिया। वाक़या इस्लामाबाद के कोहसार रेस्टोरेंट में उस वक्त पेश आया जब साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अपने मेहमानों के हमरा सहरी कर रहे थे। जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान और शाहजैन बुगटी के गार्ड्स आए और नारे लगाकर कासिम सूरी पर हमला कर दिया। इस दौरान फरीकैन ने एक दूसरे को कुर्सियां, प्लेटें और चमचे फेंक कर मारे। होटल मैदान जंग बन गया। हमले के बाद कासिम सूरी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, ये हर जगह रुस्वा हो रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है यहाँ पे बदमाशी कर रही है अवाम पे, अवाम इसका जवाब आप देखना किस तरह इनको देखे, हर जगह पे ये रुस्वा हो रहे हैं और आज जिस तरह रुस्वा होके भागे हैं ये इबरत का निशान है इन सब के लिए। कोहसार मार्केट हमले के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी फैसल कामरान ने कासिम सूरी से मुलाकात की और मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। कासिम सूरी ने थाना कोहसार में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। हमले से डॉक्टर आरिफ की दाएं आंख, खालिद भट्टी की आंख और पाँव पर जख्म आए। वहाँ मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराकर हमारी जान बचाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर इस्लामाबाद में धावे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फवाद चौधरी ने वाक़े को मुल्की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से किया गया, रियासत की रिट किधर है। अली जैदी ने कहा बदमाश वजीरों का घटियापन जाहिर हो गया। शहबाज गिल ने भी हमला बिला जवाज़ करार दे दिया। कासिम सूरी पर इस्लामाबाद के होटल में हमला, पीटीआई रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मजम्मत। साबिक वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि सऊदी अरब में एहतजाज के जवाब में अगर हुकूमत ने ये हल सोचा है तो फिर अनारकी से बचना नामुमकिन है। ऐसे रवैये मुल्क में तशद्दुद का माहौल पैदा करेंगे। ऐसा कोई और वाक़या मामलात को कंट्रोल से बाहर कर देगा। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया, कासिम सूरी पर हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से किया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला को ये सोचना चाहिए कि उनके नाक के नीचे साबिक डिप्टी स्पीकर को ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो फिर रियासत की रिट किधर है। सवाल ये है, हमला किसने किया और किसकी ईमा पर किया, हुकूमत जवाब दे। जैदी ने ट्वीट में लिखा, हमला बदमाश वजीरों के घटियापन को जाहिर करता है, उनकी गुंडागर्दी से हमारा अज़्म और मजबूत होगा। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने भी कासिम सूरी पर हमले की मजम्मत की। बयान में कहा, सऊदी अरब में लोगों के एहतजाज पर कासिम सूरी पर हमला बिला जवाज़ है। हैरत है ऐसी लॉजिक पर। आप खरीदो फरोख्त करें, बैरूनी साजिश का हिस्सा बने और लोग एहतजाज भी ना करें। मस्जिद नबवी का वाक़या, मोहम्मद यूसुफ और शाहिद आफरीदी भी रद्द अमल दिए बगैर न रह सके। साबिक कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाने काबा को देखकर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगहें हैं जहाँ पहुंचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपनी सियासी दुश्मनियां निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए। शाहिद आफरीदी ने कहा, हम रियासत मदीना के तक़द्दुस से भी मुनकर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी की तीसरी दरख्वास्त पर समाअत। आप एक बार आए, दूसरी बार आए और अब तीसरी बार आए। अब अदालत से क्या चाहते हैं? अदालत का हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार। अदालती कार्रवाई के बारे में मुनीर बाजवा से मजीद जान लेते हैं। मुनीर बाजवा, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद हसन के रूबरू हमजा शहबाज की तीसरी हल्फ बर्दारी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है और अदालत ने समाअत के आगाज पर यह फैसला किया कि ये पहली, दूसरी और तीसरी दरख्वास्त के बाद आप अदालत से आप क्या चाहते हैं। पूरे दोपहर के 2:45 बज चुके हैं, आप बताएं इस पे आप क्या हुक्म चाहते हैं, किसको हुक्म दिया जाए। इस पर अशफर साहब एडवोकेट ने ये कहा कि गवर्नर को फरीक जो है वो बनाया जा सकता है और अदालत ने जो इस्तफसार किया है कि गवर्नर को फरीक नहीं बनाया जा सकता, ये गवर्नर को फरीक बनाया भी जा सकता है। और जो हुक्म दिया था उसके मुताबिक जो है अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने भी इस्तफसार किया कि ये 15 घंटे गुजर चुके हैं और अदालत के हुक्म पर अभी तक अमल दरामद जो वो नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है और अदालत के अहकामात पर अमल दरामद जो है उसको अदालत ने ही करवाना है। अदालत जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्यों नहीं इंटर कोर्ट अपील दायर की, तो जिस पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो कि पार्लियामेंटेरियंस के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो कोई मजबूर नहीं है, मुस्लिम पार्टियों की सियासी हुकूमत है और अभी भी ये स्पीकर के जो है वो नजरबंदी के अहकाम जारी किया गया है और देख ले कि इसमें हुकूमत किसकी है। दर हकीकत हमजा शहबाजी इसमें हुकूमत कर रहे हैं। अदालत ने ये कहा कि तमाम अफ्रीकैन के मुतल्लिक़ को जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए मुनीर बाजवा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला, मेमो गेट और डॉन लीक्स जैसी संगीन साजिशें करने वाले आज तक कानून की गिरफ्त में क्यों नहीं लाए गए। सिसिलियन माफिया आईनी इदारों को अपनी गुंडा फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। आइन और कानून का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर बराबर होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए पीटीआई की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने कहा साबिक वजीर आजम के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। इलेक्शन कमिश्नर ने अली हैदर गिलानी, फहीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इलेक्शन वीडियो स्कैंडल केस, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मिला बड़ा रिलीफ। नाअहली के लिए दायर पीटीआई की तमाम दरख्वास्तें खारिज। इस केस के बारे में हकायक ठीक से पेश नहीं किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने अली हैदर गिलानी, फहीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को अली हैदर गिलानी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। पीटीआई के रहनुमाओं ने दरख्वास्तें दायर की थीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ हरासानी केस में रिमार्क्स ये दिए कि एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें रात को क्यों खुली। हाँ, अदालतें खुलेंगी, किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। इदारों को सियासी बयानिए के लिए तबाह करना पहली बार नहीं हो रहा। कभी एक शुरू हो जाता है, कभी दूसरा शुरू हो जाता है। ये अदालत अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरती। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उन पर हमला करने में क्या फ़र्क है। क्यों एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें रात को क्यों खुली। हाँ, अदालतें खुलेंगी, किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ को हिरासा किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इदारों को सियासी बयानिए के लिए तबाह करना पहली बार नहीं हो रहा। कभी एक शुरू हो जाता है, कभी दूसरा शुरू हो जाता है। हमने हल्फ लिया हुआ है सियासी बयानियों को नहीं देखना। ये अदालत अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरती। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उन पर हमला करने में क्या फ़र्क है। 9 अप्रैल की रात इस अदालत की सिर्फ लाइटें ऑन हुई, इससे किसी को क्या मसला है। शायद आइस्को को लाइट्स ऑन होने से मसला हुआ हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।